ویلکم بیک. آج کی باران رحمت کی خصوصی ٹرانسمیشن ایک خراج تحسین پیش کرتی ہے تمام والدین کو اور خصوصاً ماؤں کو. انٹرنیشنل مدرس ڈے بھی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت نکالنا بہت ضروری ہے. اگر آپ روز میرے خیال میں اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کے افطار کے وقت کچن میں نہیں بھی جاتے تو آج خصوصی طور پہ یہ ضرور کیجئے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، اگر کچھ نہیں تو تھوڑا سا وقت اپنے والدین کے ساتھ ضرور گزاریے. کیونکہ ابھی یہاں پہ جتنے ہمارے مہمان آئے انہوں نے یہی کہا کہ یہ وقت جب گزر جاتا ہے تو بہت یاد آتا ہے اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ شاید اس وقت زیادہ وقت نکالا ہوتا، سمیٹ لیتے. اس وقت آپ کو ڈانٹ بھی، کوئی ایسی بات بھی جو آج ناگوار گزرتی ہے بہت زیادہ یاد آتی ہے. تابندہ آپا، تلخیص آپ ذکر یہاں پہ کر رہی تھیں دونوں بچوں کا، آپ کی دونوں بیٹیوں کا، آپ اپنے آپ سے بانڈ کیسے دیکھتی ہیں؟ خاص طور پہ میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ کو پتا تھا کہ بیٹی کو ڈاؤن سنڈروم ہے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ وہ بغیر کہے بھی اس کے جو احساسات ہوتے ہیں ماں پڑھ لیتی ہے. آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا؟ بالکل. یہ بچے تھوڑا سا چونکہ ہر مائل سٹون ان کا ڈیلیڈ ہوتا ہے جی، تو بات بھی دیر سے کرتے ہیں، اسپیچ میں کافی ٹائم بعد کلیئرٹی آتی ہے، تو اس کے ایکسپریشنز ہی ہوتے ہیں جس سے اس کی ساری بات فی الحال میں سمجھ پاتی ہوں. بٹ اسٹل مطلب وہ میری اماں کے کہا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، گونگے دیا رمضان گونگے دی ماں ہی جانے. تو وہ بچی بات نہیں بھی کر سکتی لیکن اس کے ایکسپریشن سے، اس کے فیشل ایکسپریشن سے، اس کے انداز سے مجھے اس کا سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کی کیا نیڈز ہیں. بٹ اسٹل ماشاء اللہ اس نے تو بہت ساری چیزیں ٹپیکل بچوں کے حساب سے اچیو کر لی ہیں. اور میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اس سے میری ایک بانڈنگ اس طرح سے اسپیشل ہے تھوڑی سی کہ دوسری بچی کے آنے کے بعد جیسے ہم سبلنگ رائیولری کا بہت زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ بچی ایک بلیسنگ میرے لیے اس طرح ہے کہ اس نے مجھے سپورٹ کیا. آپ کو لگتا ہے جیسے کہا جاتا ہے نا بڑی بہن بھی ماں کی طرح؟ بالکل. میری بڑی بہن جس طرح سے میرے لیے ماں بن گئی، میری ماں کے بعد میری دونوں بڑی بہنیں ماشاء اللہ سے اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ وہ جب میں نہیں ہوتی تو بالکل صلہ بیٹا بیٹا کر کے، یہ نہیں کہ بہن ہوں، بالکل ماں کی طرح ٹریٹ کرے گی، گر نہ جائے، اس کو فیڈ کرانے کی کوشش کرے گی. اس کو پتہ ہے کہ اس کو بار بار ریمائنڈرز دینے پڑتے ہیں، اس کو ملٹیپل انسٹرکشنز دینے پڑتے ہیں. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر جب بچوں کے ساتھ کوئی اسپیشل کنڈیشن ہوتی ہے، ان کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں، تو ماں کا دل ہمیشہ یہ گھبرا رہا ہوتا ہے یا اس میں خوف ہوتا ہے کہ میں جب نہیں ہوں اس کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے تو یہ بچہ انڈیپینڈنٹلی کیسے سروائیو کرے گا. آپ ایسی ماؤں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسی ماؤں کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو اللہ موجود ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. دوسرا اس کے بعد مجھے میرے ان لاس پہ بڑا بھروسہ ہے اور یقیناً اور بھی لوگوں کو ہوگا. لیکن جو آج ہے، جو ابھی ہے، بیبی سٹیپس لینے ہیں آپ نے. آج کے دن کو جی لیں، کل کا تو کسی کو بھی نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جانا ہے، آپ کے ہسبینڈ نے جانا ہے. ماں کی دعا ہے، یعنی بچوں کی خیریت کے لیے دعا کرتی رہیے. تابندہ آپا، آپ سے ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا کلام جو آپ کی والدہ کو بہت زیادہ پسند ہو. آپ ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو سعید ہاشمی صاحب بیزاد لکھنوی کے کلام ان کی زبان سے بہت سنتے تھے. ایک بہت ہی مشہور کلام جو میرے خیال میں جسے پڑھے بغیر نعت خواہ ہی نہیں رہتا ہے، اس کے دو شعر.
आदमी जबी रह गई। साबिंदा आपा, आप पढ़ती हैं ना तो बस दिल करता है कि आप पढ़ती जाएं और हम सुनते जाएं वाकई, और ख़ास तौर पे एक ऐसा कलाम पढ़ना जो आपकी वालदा के दिल के करीब। मैं हमेशा कहती हूँ ये जो नात है ना, इसका गले से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब देखो ना, हालत खुश्क है, बैठा हुआ भी ये भी, लेकिन बस एक तो शायर जो लिखता है 70% मैं हमेशा कहती हूँ उसका कमाल है, वो बात ऐसी कहे जो दिल में उतरे, आँख से आंसू बन के निकल जाए आपके, तो वो आपके लिए समझो के एजाज़ है। असल में जब हम पढ़ते हैं, अगर वो इन्वॉल्वमेंट दिल से आ जाए, नात आवाज़ से नहीं, गले से नहीं, दिल से पढ़ी जाती है। और अल्लाह ने मुझे वो मेरी औकात से ज़्यादा अता किया, शायद इसलिए मेरा गला बैठा है या खुला है, मुझे उससे फ़र्क नहीं। जज़ाकल्लाह खैरन ताबिंदा आपा, अल्लाह ताला इसका बहुत ज़्यादा अजर आपको दे। और ख़ुसूसन आप ये जब नात पढ़ रही थी और जब आपने जैसे बताया कि आपकी वालदा का फेवरेट कलाम था, तो मैं ये सोच रही थी कि वाकई एक बच्चे की दीन से आगही और सही और गलत की तमीज़ करना, उसका फ़र्क, ये भी तो एक वालदा ही सबसे पहले सिखाती है। मौलाना साहब क्या कहेंगे, हम जब भी बात कर रहे थे कि वालिदैन के लिए किस तरह दुआ की जाए, क्योंकि आज की दुआ हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम वालिदैन के दर्जात के लिए, उनके लिए खैर खूबी, उनके लिए ज़िंदगी, सलामती, और अगर वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ किस अंदाज में करें। और अगर इसके हवाले से कोई रेफरेंस भी आप देना चाहें, लोगों को बताना चाहें प्लीज़। इसमें से सबसे बेहतरीन दुआ परवरदिगार दो आलम ने ख़ुद कुरान में हमें बताई है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलमुमिनात, कि परवरदिगारा मेरी मग़फ़िरत फरमा, वलिवालिदैया और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, यौम यक़ूमुल हिसाब, जब जिस दिन हिसाब किताब ले जाए, रब्बिरहमहुमा, खुदा ने इन पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया, मेरी परवरिश की, वैसे इन पर रहम फरमा। सबसे बेहतरीन दुआ परवरदिगार हमें इरशाद फरमाता है कि इस तरीके से अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए। और बाकायदा हदीस भी हैं कि जिसमें पैगम्बर की है परेशानी और मुश्किल, अगर जिंदा है तब भी उन्हें याद रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी याद करो, अगर इस दुनिया से कूच कर गए तब भी उनको याद, मग़फ़िरत वालिदैन, नमाज मग़फ़िरत वालिदैन पढ़िए, उनके लिए दुआ कीजिए, तिलावत कीजिए उसका सब अपने वालिदैन को, बेशक, और उनके ईसाले सवाब के लिए कार्य खैर करते रहिए, क्योंकि दुनिया में आप उनके नाम से हैं और आपके किए हुए अच्छे जो काम हैं वो उनके नामाए अमाल में हम जो कुछ भी अपने वालिदैन की वजह, बेशक आज जिस मकाम पर हैं, ये इस मकाम पर पहुंचने में सारा कमाल हमारे वालिदैन का, हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। बल्कि अक्सर कुरान हकीम में भी इसका हवाला दिया जाता है कि कुछ लोग जब गुरूर में पड़ जाते हैं, जब उनका ईगो आ जाता है, उनको लगता है कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में पाया है अपने टैलेंट या अपने इल्म की बदौलत किया है, जबकि अगर हम देखते हैं अंबिया इकराम की जो हमेशा से एक सीरत रही है, वो ये कहते हैं कि भाई जो कुछ है वो अल्लाह का फजल है और अल्लाह का फजल तुम तक तुम्हारे वालिदैन की निस्बत से पहुंचा है। अब आपको दिखाते हैं कि पब्लिक से हमने पूछा, आम लोगों से पूछा कि वो किसको अपनी दुआओं में याद रखे हुए हैं, उनका क्या ओपिनियन है। आइए देखते हैं हमारे सेगमेंट आज की दुआ में। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। मेरे वालिदैन तो नहीं इस दुनिया में है, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ होती है, फिर अपने घर के लिए होती है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमाइए जैसे उसने हम पे बचपन में रहम करा। तो ये दुआ तो मैंने बुजुर्गों से सुना है कि अपनी नमाज की दुआओं में भी इसे शामिल करना चाहिए। भिखारी वो कि जिसके पास झोली है ना प्याला है। दुआ बस यही है कि अल्लाह पाक जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए कामिल, और तमाम मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब हो। तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बूं हाली। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम होता फरमाए। पूरे मेरी वालिदा को भी, पूरे आलम के मुसलमानों की जितनी भी वालिदा हैं, वालिद हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। सबसे बेहतरीन दुआ यही है कि जिस तरह उन्होंने बचपन में हमें पाला,
या अल्लाह उनके बुढ़ापे उन पर रहम फरमा, तादेर साया उनका सलामत रखे अल्लाह ताला उनका हमारे ऊपर, इसके लिए बेसिकली दुआ मांगता हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया। एक वाक़या है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि एक शख्स ने अपने कंधों पर बिठाकर अपनी माँ को हज कराया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में पहुंचा और कहा कि क्या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो जवाब ये मिला कि तुमने अपनी माँ की एक रात की जगाई का हक़ भी अदा नहीं किया। तो यकीनन इतनी जो मुश्किलात का, चैलेंजेस का, अपनी आराम की परवाह किए बगैर, अपने सुकून की परवाह किए बगैर जिस तरह वालिदैन हमारा ख्याल रखते हैं, बेहतरीन दुआ तो यही है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें पता चलती है कि आप उन पे उसी तरह रहम करें जिस तरह उन्होंने बचपन में तुम पे रहम किया। और इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारे हवाले हमारे सामने मौजूद हैं। रज़ाई माँ का भी यहाँ पे जिक्र होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के दिल में ताबिंदा आपा तलखीस ये बात होगी कि अगर अल्लाह ताला ने इस नेमत से महरूम रखा है और अब किसी और बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो क्या वो ही निस्बत, वही मकाम अल्लाह उनको देता है या नहीं? आप कैसे देखती हैं इसको ताबिंदा आपा? देखो जी, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो मेरे देवर के बच्चे हैं, कभी मैं सोचती भी हूँ कि अगर मेरे अपने बच्चे होते तो क्या इतना केयरिंग होते, इतना ख्याल करने वाले होते, तो कभी वो कमी महसूस नहीं होती। बहुत केयरिंग, बहुत ख्याल रखने वाले। बात पता है क्या है, वो ये समझने की बात है। समझें तो आपके पराए भी अपने हैं और ना समझें तो पेट की औलाद भी आपकी अपनी नहीं होती। यानी जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से जो उनका एक ताल्लुक हज़रत बीबी हलीमा से था, या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अगर हम देखते हैं तो जो मर्तबा और मकाम अल्लाह ताला ने हज़रत बीबी आसिया को दिया, ये सब हमें यानी इशारे मिलते हैं कि जो पालने वाली माँ है उसका भी रुतबा बहुत करीब के रिश्तेदार में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी सिद्रा, जिसमें पैदा उन्होंने नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने उनको पालते और परवर करते देखा है, मुझे लगता है, मैं एक माँ हूँ खुद, मुझे भी अंदाज़ा है इस चीज़ का कि शायद मैं भी ऐसी तरबियत नहीं कर पाती, शायद मैं भी ऐसी चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं कर पाती जैसे उस खातून ने उसको प्रोवाइड की है ना। तो बाज़ दफ़ा जन्म देने वाली के बराबर ना सही तो उसके करीब करीब ही परवरिश करने वाली होती है। कैफियत होती है उसका बिल्कुल ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आप खुद फिजियोलॉजिकली उस अमल से गुजरे हैं या नहीं। जो ममता, और मेरे ख्याल में एक खातून के लिए खुसूसी तौर पे कहा जाता है कि उसकी एसेंस यही है कि उसमें ममता, मिठास और काइंडनेस हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं और अक्सर ये जो ममता और मिठास है ना, ये हम कहते हैं जायका, इसका एक खुसूसी जायका होता है जो हाथों में आता है। यहाँ पे जी ये चीज़ी पोटैटो फिंगर्स बिल्कुल तैयार हैं, तो हमारे सामने ये बिल्कुल इसकी फिलिंग वगैरह होके, इसकी कोटिंग होके रखा हुआ था, इसको तुमने डीप फ्राई कर लिया। मुझे ये बताओ कि इसमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स आयशा पके हुए थे, तो इसको कितनी देर तक फ्राई, बस हल्का गोल्डन होने तक? 3 मिनट हमने वो किया तो गोल्डन फ्राई होने तक। ठीक है। और इसके ऊपर भी तुमने चीज डाली है, विच इज लाइक एन एक्स्ट्रा टॉपिंग, अंदर भी चीज बाहर भी चीज, फिर उसके बाद हम कैसे दुबले होंगे आयशा, ये तुमने क्या जुल्म किया हुआ है। अच्छा जी, ये देख रही हूँ खूबसूरत इस पर रोज पेटल्स लगे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि गुलकंद तैयार हो गया है और इस गुलकंद ड्रिंक में डला है ऑलपर्स बेरी क्रीम भी, और साथ हमने इसमें डाला है कच्ची का जाम लिया ना, ये नहीं ये भी चलाएंगे। हाँ, ये डालना है इसको। जब तक हम रेसिपी कार्ड लोगों को दिखा रहे हैं, जब तक हम करते हैं, इसमें आप डालें, बिस्मिल्लाह करें। इसको जितना पिंक करना है तो आप जामे शीरी का इस्तेमाल कर रही हैं, जबरदस्त। और क्रीम भी डल चुकी है, इसमें और क्या क्या डाला है? क्रीम डली है, इसमें अभी डाल रही हूँ सब चीज़ें। ओके, अभी क्रीम डाल रही हूँ ऑलपर्स की। ठीक है, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। ओके, साथ हम इसमें गुलकंद और रोज जो के लीफ होते हैं खाली वो डाल लें। और गुलकंद कितना है तकरीबन? ये 1 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून है, राइट। सो देयर इज मिल्क, देयर इज क्रीम, इसके अलावा रियल फ्रेश रोज पेटल्स और गुलकंद है, और इसके अंदर थोड़ा सा जामे शीरी भी डाला है। एंड इसमें अगर गुलकंद ना हो आयशा तो क्या इसमें रोज वाटर डाला जा सकता है? रोज वाटर भी डाल जल्दी से बना लो, जो है वो ठंड के एहसास के लिए के अंदर से जो वो गर्मी की शिद्दत होती है उसे कम करें। चलाएं 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 इसको, जबरदस्त। रोजा खुलने से पहले सबसे प्यारी आवाज ये लग रही होती है ना? चलें जी, रेडी है एंड वी आर गुड टू पोर इट। लेट्स सी। इसकी गार्निशिंग के लिए इन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे फ्रेश रोजेस भी रखे हुए हैं, इसके अलावा मुझे आमंड्स भी नज़र आ रहे हैं, कैश्यू नट्स भी नज़र आ रहे हैं। इन्हें मैंने कहा ना, जो लोग डाइट करना चाहते हो तो आयशा की रेसिपीज़ ना देखें भाई। अच्छा, इसमें अगर चाहें तो जेली भी डाल सकते हैं, वो फिर कुछ और ड्रिंक बन जाएगा, वो फिर उसके अंदर और फालूदा ड्रिंक बन जाएगा, फालूदा ड्रिंक बन जाएगा। ओके, ब्रिलियंट। सो दिस इज डन।
یہ میرے خیال میں ہو گیا. اس کو گارنش کر دیں اسی سے. کین وی پٹ مور؟ او پہلے تم کریم ڈالو گی. 1 ڈالپ آف کریم. تابندہ ابا آپ کو اتنی رچ ڈرنک پسند ہے روزہ کھلتے ہی؟ نہیں، میں روزہ کھلتے ہوئے ٹھنڈا برف یخ پانی پیتی ہوں بہت. اچھا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. زبردست. اور ٹھنڈا یخ پانی الماس تم تو نہیں پی پاتی ہوگی ہے نا جی. یہ ہو گئی ہے تیار ڈرنک اور اس کے اوپر میں ہی ڈال دیتی ہوں اس کو جلدی جلدی. عائشہ یہ آپ کے ڈل گئے کیشیو نٹس اور یہ ہو گیا آمنڈز اور اس پہ ڈل گیا پھول اور اس کو اب آپ سجا دیں یا پی لیں، آپ کی مرضی ہے. بہت بہت شکریہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اسی کے ساتھ آبندہ آپا، تلخیص، مولانا صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. الماس دل تو بہت چاہ رہا ہے تم سے ایک کلام سننے کو. مجھے نہیں پتا میرے پاس وقت اتنا ہے یا نہیں، لیکن تمام ہمارے دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آج ڈو میک ٹائم فار یور فیملی. آج ویسے بھی سنڈے ہے، تھوڑا سا وقت نکالیے. بونانزا کے پاس بہترین گفٹ آپشنز ہیں. اگر ابھی بھی آپ لیٹ ہو گئے ہیں آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. ونڈرفل رینج آف فریگرنسز. اس کے علاوہ اپنی والدہ کے لیے اگر آپ ایک اچھا سا سوٹ بھی خریدنا چاہیں، ابھی ٹائم ہے، ٹیلر بھی سیکھے آن ٹائم دے دے گا تو فوراً اس کو آپ خرید لیجئے. ونس اگین بہت بہت شکریہ تابندہ آپا، تلخیص اینڈ مولانا صاحب. ایک خوبصورت سا کلام تھوڑا سا سنتے ہوئے ہم اسی کے ساتھ ایگزٹ لیتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی دوپہر 1 بجے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. بیسیکلی امی کو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی. خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے، اور ملا ہے جو بھی ملا ماں تیری دعاؤں سے. ماں